Yes. Fourth question is concentrated nitric acid is used in the laboratory work is 68% nitric acid by mass. What should be molarity calculate करना है and density given है. 68% by mass means 68 gram of HNO3. So molarity के लिए आपको क्या चाहिए? Volume चाहिए. Here density given है. So on the basis of the formula D is equals to M upon V. Mass of solution is 100 because it is 100% given in percent. 1.504 density given है. So it is the volume. Now put the value. यहाँ पे मैं फिर हर दिन बोलती हूँ कि write पहले आप formula लिखेंगे. Then what is the formula of molarity is number of moles upon volume of solution. In ml में है, in ml into 1000. Value put करेंगे and आपका answer आ जाएगा. This is the simple numerical. बस just थोड़ा सा change जो है आपको first find out करना है volume. Now a solution, second, fifth question. A solution of glucose in water is labeled at 10% W by W. What would be the molar and molarity है शायद, molality and mole fraction of each component if the solution, if the density of the solution is 1.2 gram ml minus 1, then what was the molarity of the solution? That is, तीनों चीजें find out करनी है बेटा. इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं because यहाँ पे तीनों चीजें find out करनी है. 1 for 1 mark. Molality, mole fraction and molarity. So first we find out the molar mass of glucose, that is 180 होता है and percent में है तो that is same way 90 and 10 में आ जाएगा. Moles of water is 90 upon 18, 5 moles. Moles of glucose 10 upon 180, different moles आ जाएंगे. Now mole fraction means Na upon Na plus Nb, number of moles upon total moles. Value put किया है, answer आ जाएगा 1 minus 0.01. So you will get the mole fraction of water. Now next is volume of solution. Again same formula, mass by density. Mass of solution is 100, density is 1.2. You will find out the volume of the solution. And M आ जाएगा, value put कर देंगे, so it is a molarity. And molality के लिए कोई change नहीं करना, directly given है. Number of moles is equals to 10 upon 180, 90 mass of solvent into 1000. So it is directly calculated. Just calculation है. Calculation आप कितने effectively कर रहे हैं, it depends only your full marks. Now ये वाला question बेटा थोड़ा सा although tricky है पर बहुत easy है. So you will ध्यान से देखना बेटा इसको. फोर्थ और फिफ्थ के लिए तो मैंने कहा नहीं कि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लो या लिखो, कुछ भी करो. हाँ, इस न्यूमेरिकल में आप चाहो तो आप लिख सकते हो थोड़े थोड़े से हिंट्स इन द फॉर्म ऑफ हिंट्स. Yes. How many ml of 0.1 m HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amount of both? Here given है कि equimolar amount of both. And इसमें आपको how many ml चाहिए? 0.1 m HCl are required completely to 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3. यहाँ पे आपको number of moles नहीं पता Na2CO3 और NaHCO3 के. So let the moles of each be X. So X into 106 प्लस, क्योंकि इक्विमोलर अमाउंट में है दोनों को हमने 1 ग्राम लिया हुआ है, इनको इज इक्वल टू x into 84 एंड इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 ग्राम. ओके, सो ये इक्वेशन फॉर्म की है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू विल कैलकुलेट द x. x इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ ईच, दोनों के लिए ही है. हम x की वैल्यू पुट कर देंगे बाद में तो हमारे पास आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट, आदित्य यहाँ तक क्लियर हुआ? Okay. Now 1 mole of Na2CO3 reacts with 2 moles of HCl on the basis of formula. Na2CO3 यहाँ पे reaction नहीं है, reaction बता रही हूँ बेटा. Na2CO3 plus 2 HCl gives twice of NaCl plus H2O plus CO2. यही तो होगा Na2CO3 की अगर अपन HCl के साथ reaction कराएंगे 2 NaCl. So 1 mole of Na2CO3 reacts with 2 moles of HCl. Unitary method है. So 1 upon
190 मोल ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद कितना हो जाएगा 2 अपॉन यूनिटरी मेथड से उसको कैलकुलेट किया है एंड इट इज मतलब 1 मोल के लिए इतना है तो 1/90 के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 into 1/90 moles of HCl. Similarly, NaSCO3, NaSCO3 के लिए 1 मोल ही रिक्वायर्ड होगा because NaSCO3 plus HCl gives NaHCl plus H2O plus CO2. And again for 1/190 and total moles of HCl. अब इसके लिए कितना है 1/190. So total mole कितने आ गए बेटा? In first case it is 2 by 190 and in the second case it is 1/190. So total प्लस कर लेंगे एंड टोटल आ जाएगा 3/190. आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको. नाउ मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है तो मोलैलिटी NaCl नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3/190. वॉल्यूम हमें पता नहीं है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है. V into 1000 is equals to 0.1 m. इनिशियली क्वेश्चन में गिवन है कितने हैं 0.1 m HCl. देखा क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा था पढ़ने में कि पता नहीं कैसे होगा. सिंपली इक्विमोलर है, आपने उसको इक्वेट किया एंड देन उसको चाहो तो आप थोड़ा सा इसको एज अ हिंट फॉर्म में लिख सकते हो. सो अगेन उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेना बेटा न्यूमेरिकल. आई थिंक इट इज क्लियर हो गया होगा. नाउ ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं आया है बेटा, एक बार बुक में से पढ़ रही हूँ मैं ये क्वेश्चन. क्वेश्चन 7. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percent of the resulting solution. क्या करोगे? दोनों का इंडिविजुअली एक का कितना दे रखा है 300 ग्राम 400 ग्राम, टोटल कितना आ जाएगा 700 ग्राम. इंडिविजुअली मास दे रखे हैं, सबको टोटल कर लोगे और मास परसेंट फाइंड आउट कर लोगे. दैट्स इट. इसमें इंडिविजुअली दे रखा है परसेंट में, उनको आप टोटल कर लेना एंड देन मास परसेंट जो फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम इनटू 100 से सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन. एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज prepared from 226.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. सेम है, गिवन मास है दोनों में. एंटीफ्रीज सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकॉल का गिवन मास है 222.6 एंड वाटर का है 200 ग्राम. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड इफ द डेंसिटी ऑफ दिस. मैं बार बार अब एक ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगी बेटा. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लोगे आप लोग, सॉल्यूशन टोटल मास गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लोगे एंड देन आपके पास वैल्यू पुट करोगे एंड मोलैलिटी आ जाएगी. सेम इजी क्वेश्चन है. नाउ 9th क्वेश्चन. ये 9th क्वेश्चन मुझे नहीं पता आप लोगों ने 11th में किया था या नहीं. ए सेक्शन में तो सी में तो मैंने करवाया नहीं था क्योंकि मैंने कहा था कि अपन 12th में ही करेंगे. सिर्फ अपन ने पीपीएम में कैलकुलेट किया था. A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CaCl3 supposed to be carcinogen. The level of contamination was 15 ppm. That is parts per million and it is equal to 10 to the power 6. पार्ट पर मिलियन किसके एक वजह से परसेंट अगर लेते हैं अपन तो 10 to the power 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ना. पार्ट्स पर मिलियन में अपन इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. नाउ एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास एंड डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म सैंपल. सो मैंने अभी कहा मास परसेंट में अपन किससे मल्ट करेंगे, परसेंट किससे निकालते हैं अपन 100 में होता है ना. और यहाँ पे पीपीएम में कितना होगा 10 to the power 6 से 15 गिवन है, 15 पर मिलियन 15 by 10 to the power 6. टोटल सॉल्यूशन है मास इनटू 100 1.5 into 10 to the power -3%. आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा. स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है बेटा? नो डाउट. ओके. नाउ मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी? Molality is number of moles upon mass of solvent into 1000. क्योंकि इसमें ppm में दे रखा है. Number of moles is equals to 15 ग्राम था. Molar mass of chloroform is 119.5. ये आपको टोटल करके निकालना पड़ेगा बेटा, किस कभी गिवन होगा कभी नहीं गिवन होगा. Upon 10 to the power 6 into 1000. So it is 1.25 into 10 to the power -1 m. Yes.
ये वाला थियोरी क्वेश्चन है और मैंने पहले सोचा था मैं नहीं करूंगी पर मैं एक्सप्लेन करूंगी ये थियोरी क्वेश्चन भी. What role does the molecular interaction play in solution of alcohol and water? कौन सा होगा? In alcohol and water there is a intermolecular H bonding. I think you know the H bonding. H bonding means when a hydrogen joined with fluorine, oxygen and a nitrogen, it acquires partial positive charge, and this partial positive charge attracted by the another electronegative element of second molecule. It may be same or it may be different. So this is known as intermolecular H bonding हो जाएगा. So what role does the molecular interaction? तो किस type का है? Intermolecular H bonding है. And so but these are the weaker than H bonds in water. And यहाँ पे देखो आंसर देखो क्या लिखा हुआ है, complete. So its solution shows positive deviation from Raoult's law. मतलब अगर आपको solubility 12th के level पे पूछा है तो आप सिर्फ solubility देके उसको नहीं finish करोगे. आप क्या लिखोगे? Because H bonding present in water or ethanol is higher than H bonding because में same interaction है, same and H bonding between ethanol and water. So there is a weak force of attraction and it shows positive deviation. First you will explain the intermolecular H bonding, then positive deviation. ये आपको लिखना होगा बेटा आंसर में, ठीक है? Yes. ये क्वेश्चन जब लिया था तब भी शायद नमन बंसल 2 दिन से नमन बंसल आ नहीं रहा है. Why do gases always tend to be less soluble in liquid as the temperature is raised? आदित्य ये मैंने उस दिन भी समझाया था कि KH जो है वो inversely proportional था temperature के. So if KH increases, if temperature increases, then solubility decreases. KH भी increase हो जाएगा and inversely proportional है तो ये decrease हो जाएगा. इस तरह से आप हेनरीज लॉ का फॉर्मूला देके एक्सप्लेन करोगे. State Henry's law and mention the some important applications. I think it is a very theory question. और मैंने कहा कि ये Henry's law, इसके applications and why Henry's law is the special case of Raoult's law. Justify ये इस तरह के positive negative deviation पे theory questions कई बार आते हैं. So ये मैं explain नहीं करूँगी. Now question number 13. Total number of questions जो हैं बेटा वो हैं अपने 41 है. तो अगर अपन 50-50 कर लेंगे, आज 20-21 क्वेश्चंस डिसाइड कर लेंगे तो कल फिर रिमेनिंग हो जाएंगे. The partial pressure of ethane over a solution containing, yes ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है बेटा, थोड़े क्वेश्चन नंबर 13. The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 5 gram of ethane कहाँ गया? Of ethane is 1 bar if the solution contains 5.0 into, इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है बेटा, 10 to the power minus 2 gram ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए, पढ़ लो एक बार बेटा सब लोग. एवरी स्टूडेंट प्लीज रीड द क्वेश्चन, देन वी विल डिस्कस. Yes, here P is directly proportional to mole fraction. So we know P is directly proportional to N gas upon Na plus Nb solvent, मतलब gas plus solvent. Denominator में से हम gas को neglect कर देंगे. And for constant N solvent, यहाँ पे बहुत short way में दे रखा है बेटा, easy way में दे रखा है ये question. So P is directly proportional to again N gas, number of moles gas, and that is P is number of moles of gas is equal to mass of gas upon molar mass of gas. For same gas, molar mass is constant. Equate किया है अब इन दोनों को, P1 upon P2 is equals to W1 upon W2. ठीक है, दोबारा से बता रही हूँ starting से. P, we know that according to Raoult's law, P is directly proportional to X. X gas लिया है, then denominator में से number of moles of gas we omit कर रहे हैं for easy calculation. So P is directly proportional to N gas upon N solvent.
For constant n solvent, P is directly proportional to n gas. And मतलब यहाँ तक उसको सिंप्लीफाई किया है बेटा, यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन को आप लिख सकते हो, उसके बाद तो कैलकुलेशन है. So P is directly proportional to given mass upon molar mass, and दो gases हैं. So P1 upon, for first it is P1 W1, for second gas it is P2 W2. So P1 by P2 is equals to W1 by W2. P2 कैलकुलेट करना है, all the three values given है, putting the value और आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके, यस. ये फिर थ्योरी क्वेश्चन है बेटा. व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ये पूरा मैंने कर लिया है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन दोबारा से डिस्कस नहीं करूंगी, थ्योरी में किया हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 50. यस, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आ गया है आदित्य क्वेश्चन. अब an aqueous solution of 2% non-volatile. Ronak, turn on your video beta 1 minute. Volatile solute exerts a pressure of 1.004 bar. तो यहाँ पे पहले आप देखो 2%, that is given mass, and solution का pressure है, that is P. At the normal boiling point, that is P naught दे दिया, normal boiling point. Normal boiling point ऊपर क्योंकि बार में given है, so it is 1 बार ले लेना आप लोग, है ना. 1.013 सिंप्लीफाई कर लेंगे. Now formula is P naught minus P total upon P naught A is equals to XB. वैल्यू पुट किया है, एंड वैल्यू पुट करने के बाद वी कैन फाइंड आउट द MB वैल्यू. ओके, यहाँ पे सब वैल्यूज गिवन है. ओके, X क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. डिनोमिनेटर में से हमेशा सॉल्यूट को ओमिट कर देना फॉर इजी कैलकुलेशन, बहुत लेस डिफरेंस आता है. और तुम देखोगे कि ज्यादातर कैलकुलेशंस में ये ओमिट कर दिया है. 41.35 ग्राम मोल माइनस हो गया. ठीक है, yes. Now next question number 16. हेप्टेन एंड ऑक्टेन. अगर क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन पे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप अपने बुक में से भी रीड कर सकते हो. हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन. हेप्टेन एंड ऑक्टेन दैट इज नॉन पोलर सॉल्यूशन है दोनों, एंड दोनों वोलेटाइल हैं, तो राउल्स लॉ का नॉन वोलेटाइल वाला फॉर्मूला लगेगा. At 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquid components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. दोनों के partial pressure given है. What will be the vapor pressure of a mixture of 26 gram of heptane and 35 gram of octane? अपने को वही डाल्टन्स लॉ भी लगता है. यहाँ पे मोल्स कैलकुलेट किए हैं, मोल्स ऑफ हेप्टेन, मोल्स ऑफ ऑक्टेन. Now mole fraction कैलकुलेट कर लिया है. Partial vapor pressure given है, mole fraction into vapor pressure of pure component. So we will find out and then total. दोनों को ऐड कर लो. कुणाल, कोई डाउट है बेटा? Yes ma'am. हाँ बोलो. 15th क्वेश्चन में 2/MB किधर से आया? Yes, 15th क्वेश्चन में ये वाला बोल रहे हो. Yes, yes. एक मिनट देखो कितना गिवन है बेटा. ये XB है ना, XB, हाँ, तुम लिखो XB is equals to NB upon NA plus NB. ठीक है कुणाल, NB सॉल्यूट के लिए है बेटा, तो NB is less than NA. NB is less than NA हो गया. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास कितना दे रखा है, 2 ग्राम. मोलर मास गिवन नहीं है, तो MB कैलकुलेट करना है. एंड वाटर के लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो वाटर का गिवन मास कितना हो जाएगा, 2 हटा दोगे तो 98 एंड 18. सो ये यहाँ पे ऐसे आ गया. क्लियर हो गया? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे थे. यहाँ पे 456 मतलब दोनों का इंडिविजुअली पार्शियल वेपर प्रेशर वी कैलकुलेट इन गैसियस फेज, इन वेपर फेज. तुम कहोगे कि मैम ऑलरेडी तो गिवन है, पर गिवन किस में है, सॉल्यूशन में गिवन है. अपने को फाइंड आउट किस में करना है आदित्य, गैसियस स्टेट में. सो हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन ऐड कर देंगे दोनों को. 47.97 प्लस 25.4, सो वी गेट द आंसर. टोटल अपने पास आ जाएगा. आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 16 तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. अगेन तुम देख रहे हो कि
जस्ट क्वेश्चन पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि हार्ड है, पर अगर फॉर्मूलेज लर्न है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. The vapor pressure of water is 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. That is P naught given है बेटा यहाँ पे. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution. मोल दे दिया यहाँ पे, molality दे दी again, of a non-volatile solute in it. We know that XB is equals to Na upon NB, Na plus NB. NB कितना दे रखा है? Number of moles दे रखे हैं. one molar solution है, it means 1 mole. 1 plus 1000 upon 18. मैंने जब एग्जाम्पल्स कराए थे देन उस समय 1000 अपॉन 18 मैंने कहा था 55.5 आता है फॉर 1 kg के लिए. नाउ इट इज 1 अपॉन 56.55. ये 1 कैसे आया? ये 1 है कि ये 1, इट इज 1 मोलर सॉल्यूशन, दैट इज 1 मोल डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट. सो मोलैलिटी कितनी हो गई? 1 वैल्यू. एंड वी नो द फॉर्मूला P नॉट माइनस P टोटल अपॉन P नॉट. वैल्यू पुट कर दो. P नॉट वैल्यू गिवन है, P टोटल आप कैलकुलेट कर लोगे, क्रिस क्रॉस करोगे, ये माइनस में है, इसको क्रिस क्रॉस पे ले जाना, मल्टीप्लाई कर देना. जस्ट कैलकुलेशन में टाइम लेगा. मैं यहाँ तक पूरा करवा रही हूँ जिससे कैलकुलेशंस आप लोग सॉल्व कर लो बेटा. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18. Calculate the mass of non-volatile solute. Non-volatile, ये सारे Raoult's law पे based है बेटा, lowering in vapor pressure. Calculate the mass of non-volatile solute. That is अपने को WB calculate करना है. MB given है, which should be dissolved in 114 gram of octane. WA given है, to reduce the vapor pressure of 80%. 80% है, तो reduce its vapor pressure to 18%. तो इसका मतलब कितना हो गया? 100 minus 18 reduce to दे रखा है, upon 100 वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा सीधे सीधे. सब एवरीथिंग इज गिवन, सब गिवन है बेटा. सो इसमें से 80% है, मतलब 100 minus 80 कर देंगे कि कितना रिड्यूस हुआ है. टोटल प्रेशर कितना था? 100 था. P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट से फॉर्मूला आ जाएगा. Now this is question number 19. A solution containing and 30 gram of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has, एक मिनट इसमें से पढ़ रही हूँ बेटा. A solution containing 30 gram of non-volatile solute exactly 90 gram of water has a vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin. 18 gram of water is then added to the solution and the vapor pressure becomes 2.9 kilopascal at 298 Kelvin. Calculate molar mass of the solute and vapor pressure of the water. ये I think same question है. It is same question like example जो question था अपन लोगों का, same question है. So ये same question आप solve करोगे जैसा कि उसमें अपन ने डिस्कस किया, एंड सेम इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा. P नॉट इन गैसेस, सेम एग्जांपल वाला क्वेश्चन है. मैं इसको एग्जांपल सेम टाइम पे क्वेश्चंस बार बार डिस्कस नहीं करने वाली हूँ बेटा. नाउ दिस इज a 5% solution my mass of cane sugar in water. cane sugar का फॉर्मूला क्या आता है? C12H22O11. freezing point given है, solution का freezing point given है. Calculate the freezing point of 5% glucose in water. Its freezing point of pure water is 273.15 Kelvin. Yes, ये देखो यहाँ पे दो बार कैलकुलेशंस होंगी बेटा, और ये क्वेश्चन कई बार मतलब ऑल्दो केन शुगर बदल देते हैं, ग्लूकोज और केन शुगर इन्वर्टेड चेंज कर देते हैं. यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? 5% solution of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin. Calculate the freezing point of 5% glucose in water. So first delta TF और sugar कितना है? 2.15. And formula क्या था lowering in vapor pressure का? Delta TF is equals to KF into M. दोबारा बता रही हूँ बेटा, please note it down in your notebook.
First we will find out the delta TF, then write the formula. Delta TF is equals to KF into M. Small m is molality. Putting down the formula of values of molality, number of moles 5 upon 342, given mass upon molar mass. Mass of solvent is 95 because 5% given है into 1000. So we will get the value of KF. KF आ गया आपके पास. Now dividing 1 by 2 delta TF. Second भी same way equation form कर लोगे क्योंकि delta TF KF तो आपके पास given नहीं था. दो equations आ जाएंगी. And now delta TF is equals to कितना आ जाएगा? Second case में कितना था? Calculate कर लेंगे, putting the value of KF, putting the 4.0 and minus कर देंगे, that is 273.15 minus 4.08. दोबारा समझा रही हूँ, ये first यहाँ तक for cane sugar के लिए KF value आ गई है, and for glucose value put कर दो, putting the value of KF value put कर दोगे 5 by 180 into 95 into 1000, so we get the value of delta TF. आदित्य, कुणाल, रौनक, पूर्वांशी, सबको समझ में? We will find the value of KF, ठीक है? And then in second case, by the putting the value of KF, same formula आ जाएगा, delta TF is equals to KF into M. तो M कितना जाएगा? 5 by 180, ग्लूकोज का मोलर मास 95, सेम 5% है, into 1000. यहाँ पे delta TF आया है और मांगा क्या है इसने? In water and freezing point of pure water calculate करना है अपने को, calculate the freezing point calculate करना है. So minus कर देंगे 273.15, 4.08 तो lowering हुई है. So minus करने के बाद अब solution का boiling point कितना, freezing point कितना आएगा? 269.07 करना. I think यहाँ तक clear हो गया है. And now next question. Yes. Two elements A and B form compound having formula AB2 and AB4 when dissolved in 20 gram of benzene C6H6. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin. क्वेश्चन को बेटा एक बार आप लोग सब लोग बुक में से पढ़ लो. मैं 1 मिनट का पॉज दे रही हूँ क्योंकि आप लोग masses for A का एटॉमिक मास A बिकॉज अपने को फॉर्मूला पता नहीं है, B का एटॉमिक मास B एंड फॉर्मूला इज AB2, तो A plus 2B and AB4 A plus 4B. अप टू दिस क्लियर? और लेट हमने लिया है क्योंकि हमें एटॉमिक मासेस पता नहीं है A and B के. सो A for A it is small a and for B it is small b and मोलर मास क्या हो जाएगा? AB2 का A plus 2B. एंड जैसे फॉर एग्जांपल AlCl3 होता तो मास क्या हो जाता? मोलर मास A का एल्यूमिनियम का मास लेते प्लस 3Cl का 3 into 35.5 करके लेते. सेम यहाँ पे भी हमने इसी तरह से लिया है, A plus 2B and A plus 4B. नाउ यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी है इसमें, किसमें? 2.3 गिवन है, लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है बेटा. डेल्टा TF ये फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF into M. तो 5.5 into मास कितना दे रखा है? 1 ग्राम है, 1 अपॉन A plus 2B. टोटल सॉल्यूशन कितना बना है? टोटल 20 ग्राम लिया हुआ है बेंजीन, तो मास ऑफ सॉल्वेंट 20 into 1000. आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा. नाउ सेकेंड में भी सेम क्या है? अब इन फर्स्ट से, इन थ्रू फर्स्ट यू विल फाइंड आउट, दोनों को कंपेयर करेंगे. सेकेंड में भी 1.3, 5.1 into 1 upon A plus 4B upon 20. आप दोनों को सॉल्व करोगे. सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, सॉल्विंग फॉर A and B. तो A को सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद हम वैल्यू आ गई 25.59 एंड B की वैल्यू आ गई है 42.64. नाउ कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ A and B. सो ये इनके एटॉमिक मास आ जाएंगे A and B के. ये यहाँ तक फॉर्मूला सॉल्व कर दिया है. नाउ जस्ट आप इसको क्रिस क्रॉस करके आपको जस्ट सॉल्व करना है बेटा और कुछ नहीं करना है. तो इसको आप सॉल्व कर लेना दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके.
नाउ 300 ग्राम 3 फिर भी अगर अगर फिर भी कैलकुलेशंस नहीं हो रही तो अपने पास कल का भी टाइम है एंड 23 क्वेश्चंस अभी आज सॉल्व हो जाएंगे तो कम ही क्वेश्चंस रह जाएंगे. सो वी विल डिस्कस. अगर मान लो कहीं पे भी आदित्य अगर तुम्हें लगता है कि ग्लूकोज present in a liter of its solution has an osmotic pressure of 4.98 gram, 36 gram WB osmotic pressure pi. If the osmotic pressure of the solution is 1.52 bar at the same temperature, again दो क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है बेटा यहाँ पे दो इक्वेशंस. फर्स्ट इज पाई वी इज इक्वल टू NBRT. पाई गिवन है, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, पुटिंग V1 NB 36. For glucose it is 180 into R into T. वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दो इक्वेट करेंगे इक्वेशन कैंसिल हो जाएंगे. इन सेकेंड केस पाई इज इक्वल टू CRT. सेकेंड केस में ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 1.52, सेम 1 लीटर सॉल्यूशन है, C into RT. डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, RT कैंसिल हो जाएगा एंड देन वी विल फाइंड आउट द C. C कैलकुलेट हो जाएगा. अपने पास RT कैंसिल हो गए, जस्ट दोनों में से सिर्फ C कैलकुलेट करना है. नाउ 23 इज द लास्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करने के लिए. NHEX suggests the most important type of intermolecular attractive interaction in the following pairs. N-hexane and N-octane both are non-polar liquids, so they shows van der Waals force of attraction, like dissolves like के according van der Waals force of attraction. I2 and CCl4 again non-polar है, van der Waals force of attraction आ जाएगा. Third one is NaClO4 and H2O. NaClO4 क्या होगा, it ionize हो जाएगा. NaCl4 is ionizes in water, so it is ion dipole. NaCl4 ions form कर रहा है, it is ionic compound, and H2O is a polar compound, so it is ion dipole interaction. Okay. Now third one is methanol and acetone. Formula of methanol is CH3OH and acetone is CH3COCH3. CH3 C double bond OCH3, they form intermolecular H bonding. Okay. Now next is acetonitrile CH3CN and acetone. Acetonitrile तुम्हें formula दिख रहा है CH3CN, that is C is partially positive and N is partially negative. Acetone का formula आप expand करके लिखोगे CH3COCH3. Both are polar liquids, so there is a dipole interaction. मुझे लगता है मैंने yes हाँ आदित्य. मैम एक तो मैम NaClO4 जो H2O में डलेगा तो उसके आयंस क्या क्या प्रोड्यूस होंगे? क्या क्या प्रोड्यूस होंगे? Na प्लस प्लस ClO4 माइनस. ठीक है. और मैम एक और चीज, मैम कीटोन तो H बॉन्डिंग बनाता ही नहीं है ना? कीटोन नहीं ऐसे बनाएगा, तुमने देखा कीटोन में H बॉन्डिंग नहीं बनेगी बेटा. यहाँ पे कीटोन में क्या डाला है तुमने, मिथेनॉल डाला है ना. CH3COCH3 O इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड CH3OH में O पार्शियली नेगेटिव H पार्शियल पॉजिटिव है, तो H इज अट्रैक्टेड बाय कीटोन की ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएगा. अच्छा CH3COCH3 अगर सेम है तो नहीं बनाएगा H बॉन्डिंग. एक मिनट आदित्य, कल नहीं शायद पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन जब पढ़ा था तब भी ये पढ़ा था CHCl3 forms H bond with CH3COCH3. वहां पे भी H bond बन रहा था. C के साथ 3Cl आ जाएंगे एंड H एक बार पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड कीटोन के साथ आ जाएगा. इंडिविजुअली उनमें H bond नहीं था, सो दे शोज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे. ठीक है, ये ध्यान रखना. अच्छा क्वेश्चन था बेटा. यस ये भी थ्योरी क्वेश्चन है बेटा, तो थ्योरी क्वेश्चन आज ये भी डिस्कस कर लेते हैं. Based on solute-solvent interaction, arrange the following in order of the increasing solubility in N-octane and explain. N-octane का मतलब है non-polar solvent दिया है यहाँ पे. और फिर second concept है like dissolves like. So सबसे ज्यादा soluble कौन सा होगा?
साइक्लोहेक्सेन इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो बेटा. सो आपको लिखना पड़ेगा एज एन ऑक्टेन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, सो नॉन पोलर कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. ये स्टेटमेंट देने के बाद आप अरेंज करोगे. एन ऑक्टेन इज अ, दोबारा रिपीट करा रही हूँ, डिक्टेट करा रही हूँ. एन ऑक्टेट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, so non-polar compounds are more soluble in non-polar solvent due to same intermolecular attraction. So सबसे ज्यादा क्या soluble होगा? cyclohexane. Then अगर उसके बाद हम compare करें, electronegativity of oxygen is higher than nitrogen, although CH3 is same, and oxygen, so oxygen is more electronegative than N. That's why CN is less polar than methanol. CH3CN आ जाएगा. Is it clear? CH3CN clear हुआ. Then CH3OH more polar, and KCl is ionic compound. It is the least soluble in an octane. Now, among the following compound, identify which are insoluble, partly soluble, and highly soluble in water. Now यहाँ पे solvent क्या आ गया है? Polar solvent. So मैक्सिमम सॉल्युबल इनसॉल्युबल कौन से होंगे? टॉलुइन, बिकॉज इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड. क्लोरोफॉर्म, अगेन इट इज अ नॉन पोलर. पार्शियली सॉल्युबल फिनॉल फॉर्म partial H bond with water, and pentanol again form H bond, but as H bond is inversely proportional to alkyl group. Explanation दे रही हूँ. Pentanol form H bond, but as H bond is inversely proportional to alkyl group, so it is partially soluble. These are non-polar, so insoluble, partially soluble, and highly soluble formic acid. What is the formula of formic acid? HCOOH. No alkyl group is present, highly soluble, and ethylene glycol CH2OH CH2OH. Oxygen highly electronegative है, and CH2OH दो H bond form करेगा ethylene glycol water के साथ, so it is a more soluble. So in this way यहाँ तक 25 questions हो गए हैं आप लोगों के. almost 50% से ज्यादा we will discuss. Now yes आदित्य. मैम आप एक बार ऊपर करना. अच्छा कहाँ पे, कौन से पे करूँ बोलो? हाँ 25. मैम मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ बोलो. मैम हमारे पास फिनॉल पेंटेनॉल भी अल्कोहल ग्रुप्स है, इनके पास भी हाइड्रोक्सी ग्रुप्स है, और इथाइलिन ग्लाइकॉल के पास भी है, बट फिर भी इथाइलिन ग्लाइकॉल हाईली सॉल्युबल है और बाकी के तो पार्शियली सॉल्युबल है. तुम लिखो आदित्य नोटबुक में, H bonding is inversely proportional to alkyl group. ठीक है. तो पेंटेनॉल के पास बेटा C5H कितना हो जाएगा? H काफी सारे हो जाएंगे. पेंटाइल ग्रुप है, पेंटाइल ग्रुप है तो बहुत बड़ा बल्कियर ग्रुप हो गया ना अल्काइल ग्रुप, तो वो H बॉन्डिंग को नहीं करने देगा. और इधर फिनॉल में क्या हो गया? C6H5 हो गया, ये भी बहुत बल्कियर है तो ये भी नहीं करने देगा. मतलब H बॉन्ड बनाएगा तो सही, पर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रीजन आ जाएगा. मतलब तुम्हें ये लिखना पड़ेगा इनमें, एक ये जो मैंने लिखा है ना, H बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल ग्रुप. अच्छा अब अगर तुम इथाइलिन ग्लाइकॉल देखते हो ना बेटा, ओनली क्या हो जाएगा? CH2 स्मॉलर ग्रुप है ना. कितना सा बना अपने पास? C2H4. इसलिए. और मैम अगर हमारे पास प्रोपेन 1,2 डायोल होता, प्रोपेन 1,2 डायोल 1,3 सॉरी, तो उसमें वो पार्शियली में आता या फिर हाईली सॉल्युबल में? नहीं पार्शियली में आ जाता, क्योंकि थोड़ा सा कार्बन इंक्रीज हो गया है ना. हाईली सॉल्युबल नहीं आता, ऑल्दो इट इज सॉल्युबल, मोर सॉल्युबल देन अदर ब्यूटेन 1,3 और 1,4 डायल से. जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? वो डिक्रीज होती चली जाएगी. ओके, इज इट क्लियर? यस. नाउ आई थिंक अप टू 25 क्वेश्चंस. ज्यादातर क्वेश्चंस के मैंने कैलकुलेशंस भी डिस्कस कर ली हैं, सिर्फ 1 और 2 क्वेश्चंस